خوش آمدید دوستوں، میں ہوں ابتسام زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ عمران بھائی مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ والدین نے ہماری پرورش دھیان سے کی تاکہ تعلیم میں کوئی کمی نہ رہے۔ ہماری عادات اچھی تھیں لیکن والد صاحب کی تنخواہ قلیل ہونے کے سبب میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکے۔ ان دنوں اماں بیمار تھیں اور والد کی تقریباً ساری تنخواہ ان کے علاج معالجہ پر خرچ ہو جاتی تھی۔ بھائی عمران کام ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کو کہیں مناسب نوکری نہ ملی۔ ہمارے گھر کے برابر ایک وسیع کوٹھی کافی عرصہ سے خالی پڑی تھی۔ کوٹھی کے مالک فیملی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی آتے، اسی وجہ سے ان کا گھر فروخت نہیں ہوتا تھا۔ جب مالک غیر موجود ہو تو مکان کیسے فروخت ہوگا؟ اس کوٹھی کی 4 دیواری بہت نیچی تھی، خاص طور پر وہ دیوار جو ہمارے اور ان کے گھر کے بیچ تھی۔ ان کے گھر میں آم اور جامن کے درخت تھے۔ ہم دیوار پھلانگ جاتے، کیریاں اور جامن توڑ کر دامن بھر لاتے۔ کلیم صاحب جن کی یہ کوٹھی تھی، عرصہ دراز تک پڑوسی رہے تھے۔ پہلے ان کا مکان معمولی سا تھا، جب انہیں وقت لگا پرانا گھر مسمار کر کے نئی کوٹھی تعمیر کرا لی۔ کچھ عرصہ اس میں قیام پذیر رہے اور پھر کینیڈا چلے گئے۔ ان کو وہاں شفٹ ہوئے 9 برس گزر چکے تھے اور تب سے یہ کوٹھی کبھی کبھار آباد ہوئی۔ والد صاحب ایک پڑوسی کے ناطے کلیم صاحب کی اس جائیداد کی دیکھ بھال کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کو ترقی دی، وہ مالی لحاظ سے خوشحال ہوتے گئے۔ ہمارا گھر معمولی درجے کا بنا ہوا تھا، آس پاس بنگلے اور کوٹھیاں تعمیر ہوتی گئیں، دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوش علاقہ بن گیا۔ بالآخر کلیم صاحب اپنی ملکیت فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ ویران گھر آباد ہو گیا۔ اس میں جو لوگ آئے بے حد امن پسند اور شریف تھے۔ اللہ کے کرم سے بہت امیر تھے مگر غرور نام کو نہ تھا۔ انہوں نے کافی روپیہ خرچ کر کے اس رہائش گاہ کو نیا اور خوبصورت بنوایا اور قیمتی فرنیچر سے سجا لیا۔ نئے پڑوسیوں نے ملاقات میں پہل کی اور ایک روز ماں بیٹی ملنے آئیں، جبکہ ہمارے گھر میں غربت کا راج تھا لیکن وہ دیندار لوگ پڑوسی کی حرمت کو مقدم جانتے تھے۔ اماں کے ساتھ انہوں نے گھل مل کر باتیں کیں۔ نئی پڑوسن نے اپنے شوہر کا نام عبد السلام اور بیٹی کا نمرہ بتایا۔ نمرہ ان کے ساتھ تھی اور مجھ سے 4-5 برس بڑی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے اپنائیت سے باتیں کرنے لگی۔ ہمارا ان سے یہ پہلا تعارف تھا جو بہت خوشگوار تھا۔ انہوں نے گھر آنے کو بھی کہا۔ یوں ان کی حیثیت کے باعث جو جھجک محسوس ہو رہی تھی وہ نہ رہی۔ ہمارے گھر کا ٹی وی پرانا تھا، خراب ہوا تو دوبارہ نہ لے سکے۔ اب میں ٹی وی دیکھنے ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں آنٹی ندا نے ذکر کیا کہ انہیں اپنے لان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے لیکن چاہتی ہیں کہ با اعتبار آدمی ہو۔ ان کے شوہر کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو وہ ماں بیٹی اکیلی ہو جاتی ہیں، تبھی وہ کسی کو ملازم رکھنے پر احتیاط سے کام لینا چاہتی تھیں جو گھر کے اندر بھی آئے تو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو۔ یہ علاقہ اور محلہ ان کے لیے بالکل ہی نیا اور اجنبی تھا اور وہ کسی کو نہ جانتے تھے۔ کام والی ماسی کے لیے بھی اماں سے کہا کہ اگر آپ کی بھروسے والی کوئی عورت ہو تو ہی بھیجیں۔ بار بار جب مالی اور گھریلو ملازم کے لیے والد صاحب سے کہا تو بہو نے کہہ دیا، جب تک کوئی بھروسے کا ملازم آپ کو نہیں مل جاتا عمران کو بلوا لیا کرے۔ میرے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھی، میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، آپ کو اس سے شکایت نہ ہوگی، یہ ویسے ہی کام کر دیا کرے گا۔ یہ تو کہنے کی بات تھی، دراصل ان دنوں ہم کو روپے پیسے کی اشد ضرورت تھی۔ عمران کی کہیں نوکری نہ لگتی تھی کہ وہ محض میٹرک پاس تھا اور یہ اپنے نجی ملازم کی تنخواہ 10,000 دینے پر راضی تھے۔ اس وقت ہمارے لیے 10,000 بہت تھے۔ والد نے عمران کو سمجھا دیا کہ تنخواہ کا مطالبہ نہ کرنا، وہ خود اصرار کر کے دیں تب لے لینا، اور اس گھر کو اپنا گھر اور ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا۔ خود کو معیار سے نیچے مت گرانا، کیونکہ میں نے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کی تکلیف دور کرنے کو میرا بیٹا حاضر ہے۔ اتنے دن آپ کی مدد کرے گا جب تک آپ کو ملازم یا مالی وغیرہ نہیں مل جاتا۔ یہ روز آپ کے گھر آ کر مسائل میں معاونت کر دیا کرے گا۔ بابا کی بات عمران کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ یوں بھی وہ بے حد شریف لڑکا تھا، سگریٹ پیتا اور نہ فلمیں دیکھنے کی اسے لت تھی۔ وہ کوئی نشہ بھی نہ کرتا تھا، کبھی اس نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کسی لڑکی سے مخاطب ہوتا تھا۔ اماں جو کام کہتی گھر کے سارے کام کر دیتا۔ والدین کو عمران سے اچھی امیدیں تھیں۔ عمران آنٹی کے کام کرنے لگا۔ باغ کی دیکھ بھال اور سودا سلف کے علاوہ دیگر اس نوعیت کے کام جو عموماً خواتین کے بس کے نہیں ہوتے، مثلاً کیبل لگوانا، الیکٹریشن سے کوئی کام کرانا وغیرہ،
वो इमरान को अपने बेटे जैसा समझती थीं, इससे पर्दा न था, घर के अंदर बाहर आ जा सकता था। मैं तो रोज टीवी देखने जाती, मेरी भी खातिर तवाज़ो करती। गरज ऐसे उम्दा अखलाक के लोग कम ही होते हैं। एक रोज रात को मेरी आंख खुली, प्यास लगी थी। पानी पीने को उठी तो देखा भाई की चारपाई खाली थी। दीवार से उधर सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। तभी शक हुआ और मैंने अपने घर के जीने पर चढ़कर निम्रा के घर में झांका। हमारे जीने से उनका लान नजर आता था। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में मैंने अपने भाई को निम्रा से बहुत करीब पाया। दोनों एक दूसरे के कानों में सरगोशियां कर रहे थे। दिल धक से रह गया। खौफजदा होकर जीने से उतरी और चारपाई पर लेट गई। सोचने लगी अगर बाबा की आंख खुल जाए और वो उनको यूं रात गए बातें करते देख लें या फिर आंटी निदा ही देख ले तो हमारा किया भरम रह जाएगा। मुझे नींद ना आई। तकरीबन 1 घंटा बाद मेरा भाई दीवार फलांग कर जीने पर आया और दबे कदमों आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। मेरी सांस रुकी थी जैसे सांप सून गया हो। शिद्दत की प्यास थी मगर पानी पीना भूल गई थी। सुबह अपने मासूम सूरत भाई को हसब मामूल नॉर्मल अंदाज से बातचीत करते पाया तो रात के वाक़ये को एक ख्वाब समझकर भुला दिया। इस बारे में किसी से बात न कर सकती थी, अम्मा बाबा हत्ता के इमरान भाई से भी नहीं। लब सी लिए अल्लाह मेरे भाई पर करम करे, ऐसे कैसे मना करूं कि हिजाब माने था। सोचा जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद एक रात जबकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सब घर वाले अंदर थे, मैंने देखा कि इमरान और निम्रा दीवार के पास खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। मुझे देखकर भाई आ गए और वो चली गई। भाई ने कहा, बानो इस बात का किसी से जिक्र न करना। चूंकि निम्रा मुझसे प्यार से पेश आती, खिलाती पिलाती, इज्जत देती, इसलिए मैंने किसी से न कहा। इसके बाद वो कहाँ मिलते या बातें करते मुझे नहीं मालूम। फिर बात इस मंजिल पर पहुंच गई कि जब बात रुक नहीं सकती थी तब निम्रा ने सारी बात अपनी वालिदा के गोश गुजार कर दी और कहा कि इमरान से मेरी जल्द से जल्द शादी कर दी वरना इज्जत दाव पर लगी है। उन्हीं दिनों निम्रा के वालिद सऊदी अरब से आ गए। आंटी ने इस मसले को उन पर अया किया या नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि निम्रा की मंगनी बचपन में उसके मामूजाद से हो चुकी थी। उन्होंने घर फरोख्त किया और अपनी लड़की को लेकर लाहौर चले गए। किसी बात के अफशा होने से पहले ही उन्होंने निम्रा की शादी उसके मंगेतर से कर दी। हमारे वालिदैन तक से इस मामले का तज़किरा नहीं किया और ना हमको बेटी की शादी में मदऊ किया। यूं हमसे हमेशा के लिए राबता खत्म हो गया। उनके जाने के बाद इमरान काफी अरसा गमज़दा रहा। उसने कई दिन कुछ खाया ना पिया, मुर्दा सा पड़ा रहता था। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरते देर नहीं लगती। कुछ अरसा बाद अम्मा की वफात हो गई। बाबा रिटायर हुए तो उनकी जगह पर इमरान को मुलाजमत मिल गई। बाबा हमको लेकर लाहौर आ गए और मेरी खालाजाद से उनकी शादी हो गई। एक रोज मैं खाला के साथ बाजार गई। वो एक दुकान पर शॉपिंग कर रही थीं कि अचानक वहां निम्रा आ गई। इसके साथ 2 बच्चे थे। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, गिले मिली और फिर एक तरफ ले गई। बोली, तुम्हारे बाबा अम्मा कैसे हैं और इमरान का क्या हाल है? मैंने बताया, अम्मा का इंतकाल हो गया है। इमरान भाई को लाहौर में सरकारी मुलाजमत मिली है और हम धर्मपुरा में रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। उसने कहा, अच्छा एक बात बतानी है, जल्दी से सुन लो। मेरा शौहर सामने की दुकान में अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहा है और मैं उधर बच्चों के कपड़े लेने आई थी। देखो ये मेरा बेटा अंजुम तुम लोगों की अमानत है, तुम इसे ले जाओ और इमरान को कहना इसे कुदरत का तोहफा समझ कर रख ले। मैं शौहर से कह दूंगी कि अंजुम बाजार में कहीं खो गया है। मैंने इनकार किया और इसे बताया कि इमरान भाई की बाबा ने शादी कर दी है, 5 साल हो चुके हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। कहने लगी, फिर तो और अच्छा है, अंजुम के रूप में इसे बच्चा मिल जाएगा। इतने में खाला ने खरीदारी कर ली और वो अब मेरी जानिब आ रही थीं। मैंने अंजुम का हाथ थामने से इनकार कर दिया तो निम्रा ने किस्म दी कि किसी तरह अकेली दोबारा यहां मिलो, मैंने कुछ बातें करनी है। उसने जल्दी से अपना फोन नंबर भी लिख दिया। इतने में खाला मेरे करीब आ गईं और हम दुकान से निकल गए। घर आकर मैंने भाई से निम्रा का जिक्र न किया। अलबत्ता एक सहेली के हमरा कुछ दिन बाद दोबारा इसी जगह गई क्योंकि निम्रा ने किस्म दी थी और मैं भी इस राज से वाकिफ होना चाहती थी जो आधा अधूरा सा मेरे पले पड़ चुका था। फोन पर राब्ता करने के बाद जब वहां पहुंची वो पहले से मौजूद थी। आज उसकी बेटी साथ न थी लेकिन बेटे को हमरा लाई थी। कहने लगी, तुमको खुदा का वास्ता अंजुम को इमरान के पास ले जा।
मैं शौहर से कहूंगी कि गुम हो गया है। आखिर ऐसा क्यों? आप अपने पास से इतने मासूम बच्चे को क्यों जुदा करना चाहती हैं? बस उसकी कोई वजह है। देखो ना, बच्चे तो अपने खानदान की मलकियत होते हैं। जिस गुलशन का फूल हो इसी गुलशन में अच्छा लगता है। तुम खुद समझदार हो और क्या कहूं। बेशक इमरान भाई का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन भाई किसी और के बच्चे को क्यों कर अपनाएंगे? ये तो सोचिए, फिर ऐसा जुल्म क्यों करना चाहती हैं? अब का बच्चा क्या आपको याद ना करेगा? जरूर करेगा, लेकिन चंद माह बाद भूल जाएगा। तुम उसे सगी फूफी जैसा प्यार दोगी, इमरान का प्यार भी उसे मिल जाएगा। और मेरी मोहब्बत जो अभी तक इमरान के लिए मेरे दिल में जिंदा है, इसे तस्कीन मिलेगी। अंजुम के वास्ते से सही मेरा ताल्लुक इमरान से जड़ा रहेगा। उफ मेरे खुदा, मैं लरस गई। मैंने सोचा कि क्या कोई औरत मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो सकती है कि वो अपने बच्चे को इस मोहब्बत के लिए दान कर दे, महज अपने महबूब से ताल्लुक को जड़ा रखने के लिए। हरगिज नहीं, ये मुमकिन ना होगा। तभी मैंने निम्रा से कहा, बाजी निम्रा, अभी मैं अंजुम को नहीं ले जा सकती। जिस रोज भाभी मैके गई होंगी तो आपको फोन कर दूंगी और फिर उसे घर ले जाऊंगी। तब हम भाई से बहाना भी कर सकते हैं कि हम इस बच्चे को गोद लेने के लिए किसी से लाए हैं, मसलन इमरान भाई के दोस्त से जिसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही है। शायद ऐसी सूरत में भाभी अंजुम को रखने पर आमादा हो जाए। वो कुछ गैर यकीनी कैफियत में थी, मायूस सी हो गई, लेकिन मैं इसके जज्बाती फैसले की खातिर कोई बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। डबडबाई आंखों से अंजुम को खुदा हाफिज कहा, जिसकी शक्ल उस वक्त इमरान भाई से मशाबे महसूस होने लगी थी। ताहम सोच रही थी कि कहीं ताल्लुकात की तजदीद के लिए ये निम्रा की कोई चाल तो नहीं है। मैंने घर आकर इमरान भाई को कोई बात ना बताई, ये भी नहीं कि मैं निम्रा से मिली हूं या वो मुझसे मिली थी। अंजुम के बारे में कुछ भी बताते हुए मैं लब नहीं खोल सकती थी। एक बहन अपने भाई से ये बात कैसे कह सकती थी कि तुम्हारी साबिका मोहब्बत की कोई ऐसी निशानी भी इसी दुनिया में मौजूद है कि जिसका तुमको इल्म नहीं है, आके तुमने कभी जिसका दीदार नहीं किया है। इसके बाद निम्रा के कई फोन आए, लेकिन मैंने इससे बात नहीं किया। भला कैसे मैं अपनी भाभी की जिंदगी में कोई भौचाल ला सकती थी जो कि मेरी खालाजाद भी थी। और इमरान भाई के दिल की अल्लाह जाने कि वो निम्रा को भला चुके थे या वो पुराना जख्म अभी तक ताजा था। जख्म मौजूद भी हो तो वक्त इस पर खुरंड ले आता है। इस खुरंड को छेड़ने से तो जख्म फिर से ताजा और कभी कभी नासूर भी बन जाता है। बस खुदा बचाए ऐसी मुलाकातों से जो माजी में लग़ज़िश कहलाती है। दुआ करनी चाहिए कि अव्वल तो इंसान ऐसी लग़ज़िशों से दूर रहे, और अगर खता सर जद हो भी जाए तो किसी की जिंदगी को बर्बादी से बचाने की खातिर इस खता की पर्दा पोशी की जाए कि जिसकी पर्दा पोशी खुद अल्लाह ताला ने की हो। निम्रा ने जो मुझसे कहा, जो भी इंकिशाफ किया, उसकी पर्दा पोशी भी मेरे अल्लाह को मंजूर होगी। तभी तो बदनामी के गड़े में गिरने से कब्ल उसकी शादी की सबील निकल आई थी। और इमरान से शादी तो निम्रा का एक ख्वाब ही था कि कहाँ हम गरीब लोग और कहाँ वो रईस घराना। निम्रा आज भी याद आती है तो मेरा दिल गमज़दा हो जाता है। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।